A very good morning, all of you. So, in previous class, we had done some special reactions regarding dicarboxylic acid. Guys, today again we'll see another chemical reaction series of a different dicarboxylic acid, which is your phthalic acid. Okay. One thing, guys, today we will go through all the reactions in a very funny way. Okay, and it will be like a rapid fire round where we will try to chemicalize all the reaction without any break. Okay, so let's start the rapid fire round play. ଆମେ ସବୁ ରିଆକ୍ସନ୍ କରିବା ତାର କେମିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଡିଟେଲରେ ଯିବା ବଟ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ୱିଲ୍ ବି ଆମେ କେଉଁ ଜାଗା ରହିବାନି ଟୋଟାଲ୍ ସିମ୍ପଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ରିଆକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ା କହିବି କି ଏହା ସହିତ ଏଇଟା ମିଶିଲେ ଏଇଟା ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ ଅର୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ କି ଥାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟ ମିଶାଇଲେ କ'ଣ ତାର ରିଏଜେଣ୍ଟ ଦିଆହେବ ରିଏଜେଣ୍ଟ ଦେଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ ମୁଁ ରାପିଡ଼ଲି ତୁମକୁ କହିବି ଆଣ୍ଡ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଇଟ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଓକେ ଆଚ୍ଛା so first of all you put the heading phthalic acid. So what is its pronunciation pile? PHTHALIC, phthalic acid. So by far all of you have listened that psychology or you can say psychiatric so like that here in phthalic acid P is silent. Okay, so get acquainted with this. So first of all let me do the structure of phthalic acid so that you can easily get it your IPAC nomenclature. So what is its structure, guys? It's a benzene ring. Inside it pi electrons are revolving and by far I already have told you that this is a dicarboxylic acid, so definitely 2 carboxylic acid will be attached to it. Okay, so this is your phthalic acid and phthalic acid is its common name, and if you try to write its IPAC name, it will be your benzene 1 benzene, it is 1 2 1 2 1 2 1 2 dicarboxylic acid. Okay, so its IPAC nomenclature is your benzene 1,2 dicarboxylic acid. पहले मार्क करो जदि आम नेमिंग स्टार्ट करूँ वेदर एठू जो भी स्टार्ट कर 1 नंबर और 2 नंबर पोजिशन में जेहेतु दुटा कार्बोक्सिलिक एसिड रोचे सो दैट इट्स IPAC nomenclature will be benzene 1,2 dicarboxylic acid. ओके अच्छा तो देन पहले आम जावा यार प्रॉपर्टीज पाखु. ओके प्रॉपर्टीज पाखु जावा. Properties means its physical state, its melting point, boiling point, its solubility, its dissolvability. So place it is a white crystalline solid. Remember guys, we already have studied succinic acid. Succinic acid was also a white crystalline solid, and here this is your phthalic acid, also a white crystalline solid, and its melting point is 185 degrees Celsius, which is previously your phthalic acid. Okay, phthalic acid which is previously your succinic acid equalize with your succinic acid. Succinic acid ro pile tamara melting point kete thila pile 185 degree, and remember phthalic acid ro bi melting point habo 185 degree. Okay, so it is highly soluble in cold water. Remember pile differentiate karo कि आम तुमको कही कौन टिपिकल रिएक्शन ने आम पढ़ी सक्सिनिक एसिड रे दैट सक्सिनिक एसिड इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन ईथर एंड लिटिल मोर सॉल्युबल इन water. Okay, so here in case of phthalic acid it will be completely dissolved in cold water, but completely soluble in cold water, but you can say it will dissolve in hot water. Okay, soluble in cold water and dissolve in hot water. Okay, so एतकी मन रखिदेव पे नोट ऑलरेडी मुझे तुमको देती सो दैट मुझे तुमको प्रॉपर्टीज मेंशन करनी खाली मन रखियो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड इट विल मेल्ट इन 185 डिग्री सेल्सियस एंड नेक्स्ट व्हाट इज योर what comes next ki it will soluble in cold water and dissolves in hot water. Okay, the next come to the reaction, chemical reaction. The first reaction আসছে পিলে তোমার কোন action of heat. So first reaction is your action of heat. So what is your action of heat?
पूरा पिले फास्टली आम रिएक्शन करवा से कौन कौन इफ थालिक एसिड ऑन हीटिंग जदि आम हीट कर देन वाटर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिमूव फ्रॉम थालिक एसिड एंड वन थालिक अनहाइड्राइड विल बी फॉर्म ओके सो मार्क करो this is your thalic acid electron pi electron revolving around it inside the nucleus benzene nucleus so this is your 2 carboxylic acid attached to the benzene ring तो जदि मुझे तुमको हिट करुच्ची हिट कले कौन हम पे ना गोटे वाटर मॉलिक्यूलटे बाहर जीव मार्क करो वाटर मॉलिक्यूलटे बाहरी गला सो वाटर मॉलिक्यूलटे बाहरी गला पर रिमेनिंग मो पाखे जहाँ भी रहा आई कैन राइट इट देख कौन रो पाखे CO and both the CO will be attached to a oxygen atom. So mark here hydrogen atom और गोटे OH atom OH molecule टे बाहर जावा परे ए जगह COO रहा एंड इट CO गोटे रो रहा तो जो गोटे कॉमन ओ रहा गोटे एक्स्ट्रा ओ रहा दैट विल बी मेक ए सिंगल बॉन्ड विथ द बोथ CO molecule okay or you can say carbon oxygen molecule carbon oxygen atom that particular oxygen will be make a single bond of both of it okay so this is your thalic acid and this is your thalic anhydride so play why this is your thalic anhydride because due to dehydrate or you can say we remove the water molecule from the thalic acid we get thalic anhydride तो डिहाइड्रेट हो गला एटा जेहेतु डिहाइड्रेट हो जाउची तो अनहाइड्राइड फॉर्मेशन हो बुझुछ ना नहीं अच्छा देन नेक्स्ट रिएक्शन पाको आस पले नेक्स्ट रिएक्शन से कौन कहूँ ना तुमर एक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड okay sodium hydroxide similarly I will take a thalic acid COH again COH अच्छा तो से कौन कहूँ जो थालिक एसिड मुझे कि NaOH दूची सोडियम हाइड्रोक्साइड दूची तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देले पे कौन हम से कहूँ ना मन रखिए कौन ना जो हाइड्रोजन आटमटा ये अच्छी ये हाइड्रोजन आटमटा रिमूव हम रिमूव होकर कौन कर ना जो OH टा अच्छी ता सहित मिट्टी मिसी वाटर होकर बाहर जीव बुझे ना नहीं वाटर ही बाहरी गला पर रिमेनिंग पार्ट मोर जहाँ रहा मुझे लिखिपारि देख ए जगह मोर COO अच्छी हाइड्रोजन पलैची ता जगह आसी सोडियमटा रिप्लेस है लिखिली देन ए जगह मोर ऑलरेडी COH टा प्रेजेंट अच्छे ओके so remember guys this is thalic acid and after we put NaOH when water molecule is removed then the unstable intermediate product is your remember monosodium thalate अच्छा मोनोसोडियम थालेट कहीं है पे ना जेहेतु गोटे सोडियम अच्छी से मोनो माने गोटे मोनोसोडियम थालेट है ओके अच्छा तो मोनोसोडियम थालेटा पेटा इंटरमीडिएट फॉर्मेशन है एथि मुझे एगेन तुम NaOH दूची रिमेम्बर तो आउ गोटे वाटर मॉलिक्यूल जो मोर बाहर जीव ये हाइड्रोजनटा सहित ये OH में जो बाहर जाऊँगी देन मो पाखे कंप्लीटली सोडियम थालेट पलि आसो CONA and again here also CONA and remember guys this compound when formed its name is sodium thalate remember sodium thalate okay so completely easy reaction पे so next reaction को जीवा rapidly जीवा पूरा देखो action with NaOH पर थर्ड रिएक्शन को गली मु थर्ड रिएक्शन से कौन कौन ना action with ethyl alcohol remember action with C2H5OH this is your ethyl alcohol okay so just a minute guys so देखो action with ethyl alcohol हम कौन करी ना again गोटे थालिक एसिड नेली ओके सो थालिक एसिड ने कि तादरे मु कौन करी ना C2H5OH इथाइल अल्कोहल दे देली ओके इथाइल अल्कोहल दी सारा पे मन रखियो रिएक्शनटा केमती होची ना एथरे मते कंसंट्रेटेड H2SO4 दबाको पड़ियो गोटे एसिड रो प्रेजेंस रे रिएक्शनटा हबो काहे कि हम एसिड दबा पेले ना एसिड रो प्रेजेंस रे रिएक्शनटा हेले गोटे मोनो इथाइल थालेट फॉर्मेशन हबो बाय द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल गोटे वाटर मॉलिक्यूल टा रिमूव हबो रिमूव हो सारा पर एसिड रो प्रेजेंस रे हमर जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एटी फॉर्मेशन होची मन रख ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट केमती हम ना COO C2H5
एंड ये जगार मोर पूर्व भाया COH रोटार ना जमी होता आम मोनो सोडियम थालेट या ना हो कौन ना तुम मोनो इथाइल थालेट मोनो इथाइल थालेट ओके अच्छा तो मोनो इथाइल थालेट फॉर्मेशन है पे तो सेम जिनस जो फॉर्मेशन हो गला मु एगेन आधे कौन कली ना C2H5 गोटे देदेली C2H5OH दे सारापर एगेन गोटे वाटर मलिक्यूलटे रिमूव हो वाटर मलिक्यूलटा रिमूव हो गला देख ये H ये OH अच्छी रिमूव हो गला मोर कौन पलि आसो पे मार्क कर ये COO C2H5 देन एठी भी मोर COO C2H5 पलि आस जानी हो ना नहीं अच्छा तो ये जो प्रोडक्ट मोर फॉर्मेशन है ये कंपाउंड जो फॉर्मेशन है यहाँ मोनो इथाइल थालेट थी यहाँ डाइथाइल थालेट फॉर्मेशन हम डाइथाइल थालेट ओके तो मार्क कर पार्छ पे केमती हो रिएक्शन सब इजी अच्छे रिएक्शन तुमको खाली गोटे प्रोसेस रे जीवार अच्छे एंड रिएक्शन गुड़ाक मन रखार अच्छे ओके अच्छा तो मार्क कर दियो सब स्क्रीनशॉट नहीं जाओ ओके तो नेक्स्ट रिएक्शन को जीवा पे एक्शन विथ इथाइल अल्कोहल पर नेक्स्ट रिएक्शन आम आस कौन पे एक्शन विथ अमोनिया okay so this is one of your most important reaction remember guys your fourth reaction it is your action with ammonia action with ammonia रे कौन कौन से सिमिलरली से कौन जदि अमोनिया को लेकिन आम क्या योर थालिक एसिड हिट कर हिट दबा ताले कौन फॉर्मेशन हम ना थालीमाइड फॉर्मेशन हम थालीमाइड देख थालीमाइड कौन तो मुझे नहीं गली कौन तुम थालिक एसिड नहीं गली ओके सो एवरी टाइम when you are doing a reaction remember that this is a dicarboxylic acid thalic acid okay so thalic acid नहीं कि मुझे कौन कली ना अमोनिया देली अमोनिया देके मुझे हिट कली ओके सो हिट कला पर मोर फॉर्मेशन हो कौन मार्क कर जो कंपाउंडटा फॉर्मेशन हम ये मार्क कर अगेन फर्स्ट रिएक्शन जो फॉर्मेशन होता थालिक एनाइड्राइड से थालिक एनाइड बिकज आम जो हिट दौन ना कौन से गोटे कंपाउंड रे आम हिट दौन मन रख पे फास्ट ऑप्शन तुम आगे आस कौन इट विल बी डिहाइड्रेट दैट रिएक्टर ओके सो वाटर गोटे रिमूव हो एंड वाटरटा रिमूव हो सारापर आम पाखे रोच कौन थालिक अनहाइड्राइड रोच ओके जो थालिक अनहाइड्राइड रहा दैट विल बी व्हेन we will give it NH3 अमोनिया हाँ सॉरी पे टिके मिस्टेक होगा ये जगह अमोनिया आम दबानी ये जगह अमोनिया दबानी फास्ट आम थालिक एसिड नवा सॉरी टिके मार्क कर एटा को फास्ट आम थालिक एसिड को लेकिन आगे हिट करदे थालिक एसिड को लेकिन हिट करके वाटरटा माइनस करके थालिक अनहाइड्राइड फॉर्मेशन है थालिक अनहाइड्राइड फॉर्मेशन हो सारा पे आम अमोनिया दबा अमोनिया दे सारापर कौन हम पे ना ये अमोनियार जो दीटा तीनटा हाइड्रोजेन अच्छी से तीनटा हाइड्रोजेन रू गोटे दीटा हाइड्रोजेन आउ ये जो ऑक्सीजनटा ये बाकी रही सेटा मिसिकी गोटे वाटर मलिक्यूलटे माइनस हे ओके माइनस हो सारापर रिमेनिंग प्रोडक्ट जोटा आम रहा ताको आम लिखिदे पारिबा सेटा कौन फॉर्मेशन हम CO एंड NH तुम जो ये बाकी रही दीटा हाइड्रोजेन गलापर से NH आम लिखा हम मार्क कर पे अच्छा तो ये जो प्रोडक्ट आम पे फॉर्मेशन है ये प्रोडक्टर ना तुम है कौन थालीमाइड कौन फॉर्मेशन है थालीमाइड बुझे ना नहीं जापार रिएक्शन इजी अच्छी अच्छा तो तुम अमोनिया सहित रिएक्शन गला अमोनिया सहित रिएक्शन गला पर नेक्स्ट रिएक्शन तुम आस पे मार्क करो फिफ्थ रिएक्शन इज योर एक्शन विथ PCl5 एक्शन विथ PCl5 अच्छा एक्शन विथ PCl5 तुम ऑलरेडी सक्सेनिक एसिड रे पढ़ला तो से कौन कौन जो आम रिएक्शन करवा थालिक एसिड को PCl5 सहित यहाँ कौन फॉर्मेशन कर ना थालोइल टिके डिफिकल्ट वर्डिंग पे मन रखो थालोइल क्लोराइड कौन फॉर्मेशन कर थालोइल क्लोराइड माने कौन ना बेंजीन रिंग रे COCl दीटा लगे बुझे ना सिंपल जिनस थालिक एसिड नवा थालिक एसिड नहीं कि PCl5 दबा PCl5 देला पर हम कौन पे ना जो दीटा हाइड्रोजन आटम थी OH दीटा रिमूव होती जगह आम लगे कौन ना Cl आटम दीटा लगे देख रिएक्शन करें जापर तो थालिक एसिड नेली तुम COH
सी ओ एच थालिक एसिड नहीं गली ताधरे मुझे कौन करी पे ना PCl5 देदेली बुझे ना नहीं PCl5 दे सारापर से कहे सिंपली कौन हम ना H2O2 रिमूव हो H2O2 रिमूव हो H2O2 रिमूव हो जगार COCl लगे दुटा जगह देख ये OH रिमूव है ता जगह CL रिप्लेस है बुझे ना नहीं तापर कौन हो जी जिनस आम बड़ा से सब जिनस को आमको लिखा पड़ो देख ये POCl3 बढ़ एंड HCl भी बढ़ बट दिस वन पिले ये जो रिएक्शन आम है गोटे स्केलेटल रिएक्शन पिले दिस रिएक्शन इज नॉट इन ए बैलेंस्ड फॉर्म ओके तो जेहेतु बैलेंस फॉर्म में ना तो आमको बैलेंस करने ना पे मन रख कौन ये जो PCl5 आम देता है 1 मोल अच्छी 2 मोल करा पड़ो एंड द रिमेनिंग POCl3 एंड HCl दैट विल ऑल्सो बीन 2 मोल so now if you try to balance all the atom of reactant and product it will be get balanced easily okay तो ये ऑलरेडी बैलेंस फॉर्म रे हो गला हमरो स्केलेटल इक्वेशन थिला तो एटा छोट छुआ पाठ पे प्लस 2 फर्स्ट ईयर पढ़ी पढ़ी आस स्केलेटल इक्वेशन केमती बैलेंस कर सो मो पचे बेसी टाइम नौनी तो यहाँ तुम मन रखिदेव तुम एटलिस्ट जब डिफिकल्ट हम मन रखिदेव कि जब 2 मोल PCl5 नवा क्या सहित थालिक एसिड सहित आमर फर्मेसन हम कौन थालोइल क्लोराइड तो दिस इज योर मेन प्रोडक्ट एंड दिस टू आर योर साइड प्रोडक्ट सो व्हाट इज दिस ना योर थालोइल क्लोराइड बुझे ना नहीं अच्छा तो बर्तमान एक्शन विथ PCl5 गला एक्शन विथ PCl5 पर नेक्स्ट रिएक्शन तुम आस कौन पे एक्शन विथ सोडा लाइम बुझे ना नहीं सोडा लाइम माने तुम कलिचुन CO कैल्शियम ऑक्साइड ओके सो देखिए नेक्स्ट रिएक्शन दियो हेडिंग एक्शन विथ सोडा लाइन ओके तो एक्शन विथ सोडा लाइन ने मार्क करो कौन हम जो मुझे गली कौन तुम थालिक एसिड नहीं कि मुझे देदेली 2 मोल डायरेक्टली मुझे तुमको बैलेंस फॉर्म इक्वेशन करोचे 2 मोल कैल्शियम ऑक्साइड नहीं कि हिट कली डायरेक्ट हिट कलापर मोर सिंपली कौन फॉर्मेशन हम ना जो 2टा मोल कार्बोक्सिलिक एसिड लगी पे ना यहाँ कम्प्लीटली बाहर की कौन फॉर्मेशन कर ना कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन कर CO3 फॉर्मेशन कर 2CaCO3 फॉर्मेशन कर अलॉन्ग विथ बेंजीन रिंग सो तुम मेन बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन हम कौन ना बेंजीन सहित कैल्शियम कार्बोनेट तुम साइड प्रोडक्ट हिसाब से फॉर्मेशन हम बुझे ना नहीं अच्छा तो पे जापार कौन हो तुम एक्शन विथ सोडा लाइन ने तो यहाँ 6 नंबर रिएक्शन गला पे नेक्स्ट रिएक्शन को आसवा 7 नंबर रिएक्शन को हाँ 7 नंबर रिएक्शन को आसवा एक्शन विथ or you can say it is reduction so when it comes to reduction every time one thing will come to your mind that in case of reduction either oxygen will be removed or addition of hydrogen either hydrogen add hobo na oxygen remove hobo so se कहूँ कौन जब आम सोडियम amalgam नवा सोडियम amalgam पे कौन जानछ सोडियम amalgam सोडियम amalgam हूँ गोटे रिएजेंट जोटा कि Na सोडियम मर्क्यूरी amalgam बोली कह जाए को NaHG को कंबो करके आम गोटे कैटालिस्ट हिसाब से नियंती बुझे ना तो से कौन कहे रिएक्शन टा केमती हम तो आम नहीं जा कौन ना गोटे थालिक एसिड ने कि से कहे कौन हाइड्रोजन दुटा 2 हाइड्रोजन माने एटा पिले मन रख गोटे हाइड्रोजनटा मॉलिक्यूलर स्टेट रे सब थाए H2 फॉर्म रे थाए तो बर्तमान 2H 2टा हाइड्रोजन देले माने मोनो एटॉमिक ना हाइड्रोजन दोचंती 2टा हाइड्रोजन एटम दोचंती ता सहित आम कोन देबा सोडियम मर्क्यूरी amalgam देबा सोडियम मर्क्यूरी amalgam दे साला परे कौन हम पिले जो 2टा हाइड्रोजन एटम थी सी ता भितर एटा को आउ टिके क्लारिफाई कर दूँ तुमको ये जो बॉन्ड 3टा जो सर्कलटा देची एटा मु बॉन्ड रे कन्वर्ट कर दूँ 3टा बॉन्ड पाए बॉन्ड अच्छा 3टा जापर 3टा जो पाए बॉन्ड अच्छा 2टा हाइड्रोजन एटम जो आटाच हे गोटे गोटे पाए बॉन्ड भांगी चलो ये फास्ट गोटे पाए बॉन्ड भांगी सारापर ये आ रिमेनिंग 2टा पाए बॉन्ड रहा 2टा पाए बॉन्ड सहित तुम ये रहा कौन COH
COH ये जो जिनसा फॉर्मेशन हम यहाँ तुम कौन कह दुटा हाइड्रोजन जो दिखाई डाई हाइड्रोथैलिक एसिड यहाँ कौन कह ना डाई हाइड्रोथैलिक एसिड ओके सो डाइहाइड्रोथैलिक एसिड फॉर्मेशन है दीटा हाइड्रोजन देली गोटे पाई बॉन्ड रिमूव है डाइहाइड्रोथैलिक एसिड फॉर्मेशन है तो पहले मुझे तुमको आउ रिएक्शन लिखुनी तुमको डायरेक्टली देखा कौन ना एगेन मु नेक्स्ट स्टेप रे दीटा हाइड्रोजन देवी दीटा हाइड्रोजन देकी एगेन सोडियम मर्क्यूरी अमालगम देवी मर्क्यूरी अमालगम देला पर कौन हम पे देख मुझे लिखि दूसरी ना गोटे पाई बॉन्ड ब्रेक होता है दीटा पाई बॉन्ड ब्रेक हो गोटे गोटे ब्रेक होता है गोटे ब्रेक है ब्रेक है गोटे पाई बॉन्ड रहा तो ये मुझे एगेन COH लिखदेली ये COH लिखदेली लिख सारापर ये मोर डाइहाइड्रोथैलिक एसिड फॉर्मेशन होता ये मोर को हाइड्रो फॉर्मेशन हम जेहतु दुईटा दुईटा चार्टा होगला टेट्रा टेट्रा हाइड्रोथैलिक एसिड बुझे ना नहीं टेट्रा हाइड्रोथैलिक एसिड फॉर्मेशन है अच्छा ये जो टेट्रा हाइड्रोथैलिक एसिड मोर फॉर्मेशन है से टेट्रा हाइड्रोथैलिक एसिड जो एगेन मुना पहले आउ दुटा हाइड्रोजन सहित सोडियम मर्क्यूरी अमालगम देदेली ताले कंप्लीटली तीनटा बॉन्ड पाई बॉन्ड जो से पड़ेब रिमूव होगी जगह COH दुटा लगला बुझे ना नहीं तो यहाँ तीनटा पाई बॉन्ड रिमूव है ये जो कंपाउंड मोर फॉर्मेशन है यहाँ डाइहाइड्रो यहाँ टेट्राहाइड्रो जेहेतु 2 4 6टा हाइड्रोजन आम देदेले यार ना होगा कौन हेक्साहाइड्रोथैलिक एसिड हेक्साहाइड्रोथैलिक एसिड फॉर्मेशन है तो मन रख कौन पे रिडक्शन रे किसी कहूँ जो सोडियम अमालगमटा माने ट्रिटेड हम क्या सहित सॉरी जो थैलिक एसिडटा को आम ट्रिट करवा क्या सहित सोडियम मर्क्यूरी अमालगम सहित ये रेस्पेक्टिवली आमको डाई टेट्रा एंड हेक्सा डाइहाइड्रोथैलिक एसिड फॉर्मेशन कर तो दुईटा हाइड्रोजन देले डाइहाइड्रो चार्टा हाइड्रोजन देले टेट्राहाइड्रो एंड 6टा हाइड्रोजन देले रेस्पेक्टिवली आमर कौन हेक्साहाइड्रोथैलिक एसिड फॉर्मेशन कर बुझे ना नहीं अच्छा तो बर्तमान रिडक्शन पर थैलिक एसिड पे लास्ट रिएक्शन तुम लास्ट रिएक्शन कौन आसुची पे देख लास्ट रिएक्शन तुम आसुची तुम 8 नंबर रिएक्शन बोधे पे हाँ V सेकेंड आई तो V888 8 नंबर रिएक्शन तुम आसुची 8 नंबर रिएक्शन से कौन कहूँ प्ले 8 नंबर रिएक्शन एंड दिस विल बी योर लास्ट रिएक्शन मर्क्यूरेशन ओके तो मर्क्यूरेशन पे कौन कौन देखा सी कौन कौन जो आम मर्क्यूरिक एसिटेट यूज करवा बुझे ना ना माने मर्क्यूरिक एसिटेट सहित जो आम क्या फ्यूज करवा तुम थैलिक एसिड को माने फ्यूज करवा से फॉर्म कर कौन ना मर्क्यूरेटेड प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर मर्क्यूरेटेड प्रोडक्ट पे है तो रिएक्शन को भला भाव मार्क कर जिते पे जिते आम सोडियम एसिटेट पढ़ी मन पकाओ सोडियम एसिटेट पढ़ला बेले फास्ट तो हूँ CH3 टिके डिटेल जाऊँच CH3COH हूँ कौन एसिटिक एसिड जानते आम तो जिते आम हाइड्रोजन को काढ़ी ता जगह गोटे सोडियमटे लगाऊे तो आना होता कौन सोडियम एसिटेट होता तो सिमिलारली से कौन कौन ना जिते गोटे एसिटिक एसिड रू हाइड्रोजन को काढ़ी ता जगह मर्क्यूरी लगेबी तो या ना हो कौन मर्क्यूरिक एसिटेट तो पे रिएक्शन को आस से कौन थैलिक एसिड गोटे नहीं जावा थैलिक एसिड नहीं किना से जिते गोटे मर्क्यूरिक एसिटेट आम दबा तो से मर्क्यूरिक एसिटेटा रिएक्शन हो सारा फॉर्मेशन कर कौन मार्क कर सॉरी है तो पे से कौन कौन ना ये जगह CH3COO टाको बर्तमान 2 मोल मुझे 2 मोल नेबी कौन पाई ना HG टा बर्तमान आसी जॉइंट है केतबले जॉइंट होची ना जेतबले COH और ये COH रु हाइड्रोजन आटम दुटा बाहर जाऊँ तो से दुटा हाइड्रोजन आटम बाहरला परे जितेबाला से दुटा कनेक्टेड हेले जाइए HG सांगरे से हाइड्रोजन आटम बाहर की जीवे कुआड़े ना CH3COO सांगरे हाइड्रोजन मिसी एसिटिक एसिड फॉर्म रे रिमूव हो बुझे ना नहीं तो ये गोटे मर्क्यूरी अच्छी मर्क्यूरी बसला आमर ये साइड प्रोडक्ट हिसाब से कौन फॉर्मेशन हम CH3C
COH केतरा मोल रे 2 मोल रे ये गला ये काम सरला बर्तमान ये साइड प्रोडक्ट को छाड़ साइड प्रोडक्ट कथा भूली जाओ बाहर ची बोली बर्तमान या कथा लक्ष्य कर एटा गोटे इंटरमीडिएट फॉर्मेशन है ये जो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन है एथिरे मु कोन कली पिले अगेन मु देली कहा को CH3 COO होल 2 ता सहित देली HG मर्क्यूरिक एसिटेट देखि कोन कली पिले फ्यूज माने फ्यूज्ड हेले माने मिसी गले कंप्लीटली मिक्स्ड कली फ्यूज कर साला परे देखो मोर कंबाइंड प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन होची केमती फॉर्मेशन होची पिले मन रखिबो कोन ना एठी फर्स्ट स्टेप रे दिटा हाइड्रोजन फर्स्ट स्टेप रे देखो फर्स्ट स्टेप रे दिटा हाइड्रोजन रिमूव होला एसिटिक एसिड फॉर्म रे एठी बाहरला सेकंड स्टेप रे कोन हबो ना ए जो जगह रे पिले मार्क करो जो COO अछि एटा कंप्लीटली आउट हे जो एटा कंप्लीटली बॉन्ड टा ब्रेक हे जो मार्क करो तो एठी मु पाई बॉन्ड तीनटा दे देली दे सारा पर रिएक्शन लक्ष्य कर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एठी कार्बन ऑक्सीजन एठी केतरा थिला पले एठी ऑक्सीजन दीटा रहउतला बुझौछ ना नहीं तो एठी मर्क्यूरी रहउतला एठी कार्बन डाइऑक्साइड रहउतला COO रहउतला से कोची कोन ना ए जो COO तीनटा ओ दीटा ओ अछि ताथरु गोटिए ओ ऑक्सीजन कार्बन सहित डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कला आ गोटे बॉन्ड फॉर्मे आ गोटे जो ऑक्सीजन थिला से आसी एठी रहिला बॉन्ड फॉर्मेशन कला एंड सेकेंडली से कोची कोन ए जगह रे जो मर्क्यूरीटा थिला से आसी की डायरेक्टली बेंजीन रिंग रो ए बॉन्ड सहित बॉन्ड फॉर्मेशन करिवो ए पोजीशन ने बॉन्ड फॉर्मेशन करिवो एंड कहा को रिमूव करी ना COO को रिमूव करी एंड से बॉन्ड टा जाके डायरेक्टली अटैच हो का सहित ऑक्सीजन एटम सहित बुझे ना नहीं एंड जो ये COO टा बाहरला सेटा हमर कार्बन डाइऑक्साइड हिसाब रे साइड प्रोडक्ट है कि रिमूव हो बुझे ना नहीं तो रिएक्शन टा देखियो टिके कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन अछि फास्ट केमती कोन हमें मर्क्यूरिक एसिडेट नौचन दिटा हाइड्रोजन काढी की एसिटिक एसिड फॉर्म रे बाहर जाउछि एंड गोटे इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होछि एंड फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड टा रिमूव हे कि मर्क्यूरीटा आसी कि से बॉन्ड फॉर्मेशन करी केमती कोन हमर फाइनली मर्क्यूरेटेड प्रोडक्ट फॉर्मेशन होछि सो एटा को तमे कोन कहउछ बोले मर्क्यूरेटेड प्रोडक्ट मर्क्यूरेटेड प्रोडक्ट बुझे ना नहीं तो मन रखियो पिले दिस इज ऑल्सो an important reaction so ए फॉर्म रे आम पिले 8टा रिएक्शन आम पढ़ले 8टा केमिकल रिएक्शन पढ़ले सो बारंबार प्रैक्टिस करे पिले इजी अच्छे गोटे फॉर्म रे पकई दबो जिनसटा गोटे फॉर्म रे पकई देले इजीली एटा मन रखिबो कारण तुमको मन रखिबार अछि कोन ना आइदर तुम को जगह रे हीट दोचो को जगह रे मर्क्यूरी अमालगम दोचो को जगह रे तुमर कोन मर्क्यूरिक एसिटेट दोचो ए सब जिनस तुमको मन रखिया को पड़े बुझे ना नहीं so this is all about your today's class and all about your thallic acid properties and your physical property and chemical property okay so next class रे गोटे नुआ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड नहीं के आसीबा so till then thank you thanks a lot